سوال و جواب کا اگر کچھ ہے تو مائک ہے اگر آپ کے پاس، نہیں تو کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. کیا سوال ہے؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں پہلے یہ آئیں گی پرچیاں. آپ کو کچھ کہنا ہے؟ آپ لوگ بیٹھیں گے نا، سوال کے جوابات دے لوں میں؟ ہاں الحمدللہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ ہی نہیں رہیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں بیٹھ کے؟ کھمبوں کو سنائیں گے؟ ماشاءاللہ. بچوں کے ذریعے سے بچے سوالات لے سوالات دے سکیں آپ لوگ. ہاں پرچیاں، نہیں تو کسی کو نہیں لکھنا آتا تو بول کے ابھی تھوڑی دیر میں بول دینا، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہو، سفر سے واپس آنے کے بعد پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر والی نماز؟ وضاحت کریں، عین کرم ہوگا. نہیں، سفر کے حالت میں جو قصر کی نماز ہے، اگر آپ مثال کے طور پر رانچی یا آپ کلکتہ سے واپس آئے ہیں اور بیچ میں مثلا ظہر کی نماز رہ گئی یا عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر یہاں پہنچ گئے، خود بنیا پہنچ گئے، تو یہاں اب آپ کو قصر نہیں بلکہ 4 رکعت مکمل پڑھنا پڑے گی. ٹھیک ہے؟ واضح؟ سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ. دوسرا سوال کسی بھائی نے کیا ہے، شیخ کیا طالبہ آواز پھیلانے کے لیے اسپیکر کا استعمال کر سکتی ہے؟ بلا ضرورت تو کسی کو اسپیکر کا استعمال نہیں، لیکن اگر ایک طالبہ سے مطلب اور لڑکی ہے یا عورت ہے، داعیہ ہے، دعوت دینے والی، عالم ہے، فاضلہ ہے، اگر وہ تقریر کرنا چاہتی ہے تقریر کرتی ہے، اور لوگ بیٹھ کر کے لوگوں تک اس کی آواز پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال ہوتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. وہ دین پھیلائے، دین سکھائے، دین کی تعلیم دے. 300 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر بیٹھتے تھے اور درس لیا کرتے تھے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے انہیں درس دیا کرتی تھی، انہیں حدیث بتاتی تھی، انہیں تعلیم دیتی تھی. وہ بھی تو عورت تھی، وہ بھی تو ہماری ماں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو عورت اگر دین پھیلانے کے لیے یوں اس طرح سے آواز مائک کا استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. شیخ ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی رہتی ہے اور اسے لگا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذرا احکام بیان کریں. حضرات آج راستے میں برہٹ کے چوک والی مسجد میں میں نے مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے جیسے ہی دروازے کے پاس گیا، 2 ٹوکریاں اتنی بڑی بڑی ٹوکریاں ٹوپیوں سے بھری ہوئی تھیں، اور کچھ لوگ ٹوپی نکال کر رکھ رہے تھے. امام صاحب بیچارے ساتھ میں تھے. میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ ٹوپی. یہ کیا ہے؟ یہ تو خیر ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. اپنے گھر کی بلا خود کو نہ پتا، لیکن اہل حدیث مسجد میں یہ بھی بلا ہے تھی. میں نے وہ ٹوکری اٹھا کے میں نے باہر، میں نے اس کو لے کے جاؤ، آگ لگاؤ، ورنہ کورونا میں پکڑے جاؤ گے، سب کو کووڈ-19 لگے گا اور مرواؤ گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے. یہ کیا بلا ہے؟ ٹوپیاں. ٹوپی بہت شوق ہے تو اپنے خرید کے لاؤ. اس کو بولو ٹوپی پہن کے سسرال جائے، وہ ہے ہمت اس کے پاس؟ اما مسجد سے باہر نہیں جا سکتا وہ؟ سسرال تو بڑی دور کی بات ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اٹھا کے پھر میں نے کہا اس کو جلاؤ اسی وقت، ورنہ اس میں جراثیم ہے. اس کے سر میں کیا بیماری ہے؟ کسی کے سر میں بیماری نہیں، وہ آ کے ٹوپی لگائے، اس کے سر میں بھی بیماری ہو. یہ وائرس تم بانٹ رہے ہو، پھیلا رہے ہو. ایسے تو کورونا پھیلا تھا. تو انہوں نے کہا مولانا بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو امام ہوں، ویسے بھی مسکین آدمی، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں. تو آپ لوگ اپنے اماموں کی نہیں سنتے ہو؟ ہاں غلط بات ہے. جو اچھی باتیں ہیں مانو. یہ کون سی بات رہی کہ ضد اور ہٹ دھرمی کرنا؟ اچھی بات نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے میں نے دیکھے وہ 5-6 تولیے ٹنگے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ پوچھ رہا ہے، کچھ میں ناک پوچھ رہا ہے، استغفر اللہ. دوسرا ہے وہ بھی منہ پوچھ رہا ہے. ہم نے کہا یار تم کو گھن نہیں آتی کیا ہے؟ پھینکو. میں نے کہا اس کو بھی پھینکو، جلاؤ، اس کو جلا ڈالو. یہ نہیں کہ دھل کے اس کو پھر یوز کرو، نہیں، غلط بات ہے.
जला लगा, और कभी टांगना नहीं। जिसको शौक है वो टॉवल टिश्यू पेपर अपने जेब में रखे। वैसे भी पोछना ये सुन्नत नहीं है, वजू बनाया वैसे ही पानी टपकता रहे, जाके नमाज पढ़ें आप, अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है। पोछना सुन्नत नहीं, टपकना ही सुन्नत है। सही समझा। 15 शाबान को रोजा रखना और उस दिन कब्रों की जियारत करना कैसा, सब बिदत है। 15 शाबान जो बिदत है ये सब करना, ठीक है। बर्थडे मनाना कैसा है, हराम है। जब नबी का मनाना हराम जायज नहीं है, हराम है, तो हमारा तुम्हारा हम किस खेत के मूली है। ये बर्थडे वगैरह मनाया जाता है क्या इधर? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो पैसे से कोई अच्छे काम करो, अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिला पिला दिया करो। सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं? बस सुन्नी, वो सुन्नी का कौन होता है? सुन्नी सुन्नत पर अमल करने वाले को कहते हैं सुन्नी। ये सुन्नती, सुन्नी वो है जो सुन के मुसलमान हो, सुन के। भाई सुन्नी किसके मुकाबले, सुन्नी किसको कहते हैं? तो उसको बिदती कहिए, उसको सुन्नी तो ना कहिए यार, उसको बिदती कहिए। वो सुन्नी कब से हो गया? हाँ, अगर ये सुन्नी सुन के मुसलमान होने वालों में हो तो वाकई वो सुन के ही बेचारा मुसलमान हुआ है, हैं? अल्लाह हिदायत दे। किसी भी बिदती मुशरिक के पीछे नमाज जायज, चाहे वो अपने आप को जिब्रील अमीन कहता, बात खत्म। चाहे अपने आप को बोलो जिब्रील कहता हो, जाहिर वो शैतान ही होगा जो अपने आप को जिब्रील कहेगा, उसके पीछे नमाज जायज है। और कोई सवाल? जी। सदक़तुल फित्र का पैसा जो है वो सदक़तुल फित्र का पैसा, माशाअल्लाह, बड़ा हैं? कौन हकदार? सबसे पहले तो देखें, बुनियादी बात यह है कि सदक़तुल फित्र का हकदार वही है जो ज़कात के लेने का हकदार है। 8 लोग बताए गए हैं उसके लिए। 8 ज़कात के लेने वालों में 8 लोग बताए गए हैं। फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, कर्ज़दार हैं, और इसी तरह से इब्न सबील हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राहों में जो रहते हैं, है ना, या इसी तरह से वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम है, यानी गैर मुस्लिमों को उनके दिल को करीब करने के लिए, नर्म करने के लिए ज़कात की रकम दे सकते हैं। तो जो लोग ज़कात के हकदार हैं वही सदक़े फित्र के भी हकदार हैं। अहले मदारिस उसके हकदार हैं। रोजा रख के गुल घसना कैसा है? एक सेकंड बेटा, मैं बताता हूँ। वो बड़ा गुल याद आ रहा है। हालांकि मदारिस वाले मदारिस, ये जो सवाल आया है कि सदक़े फित्र पैसा किसको दें, अव्वलन सदक़े फित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलफ से ये साबित नहीं है सही ढंग से कि सदक़े फित्र में पैसा निकाला जाए। पैसा नहीं, बल्कि उसके एवज में गल्ले निकाले जाए, ठीक है, गल्ले निकाले जाए। अब वो गल्ला निकालने के बाद क्या करना चाहिए? जाहिर है कि जो फुकरा हैं, मसाकीन, उनको दे दीजिए, उनमें तकसीम कर दीजिए। हमारे यहाँ तो पैसा ही निकाला जाता है। आपके यहाँ पैसा निकाला जाता है तो गलत किया जाता है। ये पूरा इलाके में वही होता है। तो गलत किया जाता है। पूरा इलाका मिलके किसी गोबर को सोना कहे तो क्या सोना हो जाए? तो ये तो मौलवी साहब भी किए हैं, हम लोग क्या? तो मौलवी साहब करें चाहे दुनिया करे, जो नबी से साबित नहीं है वो नहीं है। अब बेहतर और अफजल सही यही है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी दीनार और दिरहम थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने दीनार और दिरहम निकालने का हुक्म नहीं दिया। सुन्नत यह है कि आप गल्ला निकालें, चावल है, गेहूं है, आटा है, खाने की जो भी चीज़ें हैं वो आप गुरबा मसाकीन में बांटें, दें। आप मदरसे के अंदर, शेख ने किसी ने पूछा है, तो मदरसे के अंदर अगर ऐसे मिस्कीन और गरीब तलबा रहते हैं जिनके खाने का पीने का इंतज़ाम है तो आप वहाँ भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मदारिस में तो यतीम गरीब नादार बच्चे रहते हैं। हाँ, तो उनको दे सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं, ठीक है, उन्हें खिला सकते हो, ज़्यादा हकदार। रोजा रखकर गुल घसना कैसा है?
रोजा रख के गुल घस रही है। गुल क्या है? गुल क्या घस रही है? पॉकेट में पाउडर टाइप का नशा है वो नशा नशा। आदिम सब ज्यादा करते हैं, नहीं नहीं सभी घसते हैं। वो मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादा यूज करते हैं उसका। नशा है। नहीं, वो हराम है, वो हराम है। नशा किसी भी चीज का है वो हराम है। उनके रोजे बातिल हैं, उनको डरना चाहिए अल्लाह ताला से, और अल्लाह से डरना चाहिए। जी, और कोई सवाल? अरे वो हमारे माओ बहनों बेटियों, ये रमजान के महीने में सहर के वक्त खाना खाने के लिए मस्जिद के माइक से उठाया जाता है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। पकाने के लिए मस्जिद। अरे अल्लाह आपको जन्नत में बिला हिसाब किताब ले जाए। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दफ़ा मैं अपने ससुराल गया, बेंगलोर ही में ससुराल है भैया, वहाँ गया, अल्लाह की कसम 2 बजे से जो मौलवियों ने ओए ओए माइक में चिल्लाना शुरू किया है, बेड़ा गर्क। एक इधर से सारे माइक खुले। अल्लाह से डरो मौलवियों, मुअज्जिनों, जिम्मेदारों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इसीलिए माइक वगैरह बंद किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादती किसी भी चीज की, वो भी गुलू, ये जायज नहीं है। ये कौन सा तरीका है? माँ बहनों 2 बज चुके हैं, सहरी का वक्त हो गया है, अब उठ के सहरी पकाओ। फिर 15 मिनट के बाद सहरी खाने में 1 घंटा 45 मिनट और रह गया। अबे तेरे बाप का क्या है बेटा, नालायक। ऐसे बेगैरत को मैं नौजवानों से कहूंगा, अगर आइंदा रमजान में ऐसा कहीं हो, तार काट दो। हाँ, गलत है, बंद करो इस ढोंग धतूरे को। सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, सबके पास घड़ियां हैं। तुम्हें कोई हक पहुंचता नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। अल्लाह की कसम ये हराम है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। कुछ मस्जिदों में अजान होती है, हराम है, ईजा पहुंचाना हराम है, तकलीफ पहुंचाना हराम है अपने पड़ोसी को। उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उनका भी एहतराम करो, उनकी भी इज्जत करो, वो भी इंसान है बेचारे। तुम्हारा रोजा है, उन गरीबों का रोजा नहीं है, उनके स्कूल हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बीमार हैं। इतना बस माइक में अजान दे दिया काफी। ज्यादा से ज्यादा तुम 1:30 बजे, अगर तुम्हें ज्यादा ही कुछ होता है तो अजान दे दो, ताकि, या 2 बजे की सहरी का वक्त हो गया है, ये सुन्नत है, बस अजान दे दो। और फिर खत्म जब हो सहरी तो अजान दे दो। बस अब सहरी में 5 मिनट बाकी रह गया है, जल्दी जल्दी सहरी कर लीजिए, नहीं तो सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। अजीब बेगैरती है, बच्चों को लगाया हुआ, कोई नात पढ़ रहा है, कोई गजल पढ़ रहा है, कोई नज़म पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है दीन का मस्ती चल रही है। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे अजीज ने, मेरे भाई ने। अल्लाह उनके चेहरे रोशन करे और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। पूरे इलाकों में यह आवाज पहुंच जानी चाहिए, और कोई मौलवी अगर उसको जायज करा, कल खुतबे में भी मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सब उलमा को बयान करना चाहिए रमजान की लज्जतें, बरकतें, नेमतें। ये मौलवी भंग कर देता है एक टिफिन के लिए। इसको डर लगता है कि अगर कोई खातून ना ईद के हमारी बहन नहीं उठी और टिफिन तो हमारा आएगा नहीं, तो मैं बगैर सहरी के न रह जाऊं, इसलिए चिल्लाता है। ये समझ जाओ, ये इसीलिए चिल्लाता है, ये एक के लिए चिल्लाता है कि इसका टिफिन कहीं सहरी में न गायब हो जाए। शहरों में भी, मैंने बेंगलोर में भी लोगों को डांटा, अल्लाह की कसम खुतबे दिए। मैंने कहा हराम है तुम्हारे लिए मौलवियों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मस्जिदों में नहीं होता। वहां अहले हदीस मस्जिदों में बेंगलोर में कोई ऐलान पेलान नहीं होता। ये सब अल्लाह उन्हें हिदायत, जिनकी वजह से हम सब मुसीबतों में पड़ रहे हैं, उन्हीं की गलतियों से हम मुसीबतों में पड़ रहे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। मौलवी लोग चंदा करने के लिए जाता है, बोलता है यतीम बच्चा के लिए कुछ चंदा दीजिए। माँ बहन पायल उतार कर दे देता है, वो पायल उतार कर अपना बीवी को पहना देता है। पायल उतार के अपनी बीवी को नहीं पहनाएगा तो क्या खुद पहनेगा? हाँ, तो यतीम बच्चों को पैसे दे के देता ना बेटा, आपकी बदजनी। ऐसा पहनता है। हाँ, तो आप जाकर के उसके पीछे पीछे जाते हो कि क्या करता है? नहीं करना चाहिए सर। इतना तो भरोसा करो अल्लाह के बंदो, इतना थोड़ी, उसे भी इंसान, वो भी अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना है।
एतमाद रखो, हुस्न ज़न रखो, और अगर वो पिढ़ाएगा ना तो याद रखो वो जहन्नम में जाएगा उतना कट के पैर। आपने दे दिया, आपने दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जन्नत हो गई, आपका तो हीरा हो गया माशाल्लाह। लेकिन अगर उसने उसमें खुरद बुरद किया या ऐसा किया, बगैर खरीदे हुए अपनी बेगम को पहना दिया, तो वो उसका जिम्मेदार है अल्लाह ताला की, है कि नहीं। लेकिन आप नीयत पे हमले न करो, हुस्न ज़न रखो अपने मोमिन भाई से। इन्ना बअद ज़न्न इस्म, बाज़ ऐसे गुमान जो होते हैं वो गुनाह होते हैं, नहीं करना चाहिए। अच्छा गुमान रखो, अच्छे रहोगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई सवाल? हमारे मस्जिद में 8 रकात तरावी होता है, 20 रकात भी होता है, तो कौन सा है सही? देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। रमज़ान में जो रोज़ा रखे अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है, ईमान के साथ। हाँ, और इसी तरह आपने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो पिछले गुनाह हैं क़याम करने की वजह से रमज़ान में अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब अल्लाह के नबी ने जब दोनों फरमाया है, रोज़ा भी क़याम भी गुनाहों को माफ़, तो आपने कितना किया है ये देखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना क़याम किया है। तो आप सारे हदीसों को सबको खंगाल लें, सब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत और 3 रकत वित्र 11 और कभी 13, 5 रकत कर दी तो 8 5 13 रकत, ठीक है। इतनी रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो ये नमाज पढ़ा करते थे। 3 दिन आपने सहाबा को भी पढ़ाई तो इतनी पढ़ाई, इतनी नमाज पढ़ाई, तो इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, पढ़ें। इसके अलावा अगर आपको और पढ़ना है तो आप रात भर नफिल पढ़ो, 12 पढ़ो, 15 पढ़ो, 20 पढ़ो, 40 पढ़ो, 45 पढ़ो, 50 पढ़ो। बाद अइम्मा से 60 60 70 70 रकतें भी साबित हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो कि नहीं 11 रकात बिदअत है, गलत है, ये है वो है, 20 रकत ही सुन्नत है, ये झगड़ा पैदा करने की वाली। 20 रकत अल्लाह के नबी से साबित नहीं, सुन्नत वो है। और आपने फरमाया क़याम करो, उसकी कोई हद नहीं है, सुबह तक करो। 11 रकत में क़याम पूरा सुबह तक हो जाए, या रकत बढ़ा दो, रुकू सजदे छोटे कर लो, 18 कर लो, 40 कर लो, 45 कर लो, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल? अरबी में छोटा छोटा सूरा पढ़ना कैसा है? कोई हर्ज नहीं है, ये हम लोग के तो नहीं होता। हाँ तो नहीं है, हाफिज नहीं है तो कोई अच्छा छोटा छोटा सूरा कैसा है? क्यों कोई इमाम साहब जो पढ़ाते हैं क्यों छोटा छोटा कुरान लेके पढ़ो? नहीं, पीछे से बोलता है कि छोटा छोटा पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। बुढ़ा लोग बोलता है, नहीं सभी लोग जवान ही बोलते हैं, इमाम साहब जो पढ़ाते हैं देखो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम साहब को भी चाहिए कि छोटा छोटा पढ़ाओ, कोई बात नहीं, कुरान कोई ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो वो हुज्जत नहीं है, बल्कि इमाम के लिए अगर कुरान याद नहीं है तो हाथ में कुरान लेकर एक एक सफ़ा 2-2 सफ़ा, अगर वो लोगों को शौक़ है कि कुरान को सुने तो एक एक सफ़ा 2-2 सफ़ा कुरान ले करके देख करके पढ़ा सकता है। यहाँ लकड़ी का बना ले, जब एक सफ़ा हो जाए तो उसको वहाँ रख दे और रुकू करे, सजदा करे, फिर उठे तो फिर कुरान उठा करके फिर देख करके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम हज़रत ज़कवान थे, चुनांचे हज़रत ज़कवान को हज़रत आयशा ने कहा कुरान देख करके तुम पढ़ाओ। वो पढ़ाते थे, क़याम करवाते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला क़याम करती थी। तो ये दलील है इस बात की कि नफिल नमाजें देख करके कुरान पढ़ सकते हैं। आप आम दिनों में भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कुरान ख़त्म हो नमाज में, तो आप कुरान देख करके पढ़ें, 2-2 सफ़े, एक एक सफ़ा और या आधा सफ़ा। छोटी सूरतें लोग थके वाले हैं तो कोई बात नहीं, छोटी भी पढ़ करके 8 रकात 11 रकात आप पढ़ लें, कोई हरज उसमें नहीं है। औरत मैयत जैसे औरत की है अगर तो उसको गैर महरम देख सकता है? भाई ने सवाल किया है कि अब मैयत अगर औरत है तो क्या उसे गैर महरम देख सकता है? नहीं देख सकता। जिस तरह ज़िंदगी में उसका देखना हराम था, ऐसे मरने के बाद भी उसका चेहरा देखना हराम है। जी वालेकुम। बारात में शामिल होकर खाना कैसे है? बारात लाना ले जाना हराम है,
ज़्यादातर मौलवी लोग जाते हैं। अब मौलवी जाएं चाहे गैर मौलवी जाएं, मौलवियों पर क्यों सारे तल तोड़ रहे हैं? मौलवी आलिम भी मान लिया जाए कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो लोग भी जाते हैं उसमें शरीक। बारात नहीं जाना चाहिए, ये इस्लाम में नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से आई हुई रस्म है। खाना हराम है या तो हलाल है? नहीं, बारात वगैरह का जो खाना हमारे यहाँ इस वक्त चलता है ये सब नहीं खाना चाहिए, जायज़ नहीं है ये। बहरहाल वही मैं पूछना चाहता ये जायज़ नहीं है। हूँ। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जी, मौलवी आलिम भी उसमें शरीक होते हैं। अब मौलवी के लिए भी हराम है, गैर मौलवी के लिए भी हराम है। जी, और कोई सवाल? आज आपने जो पीछे बेचारे बैठने बैठ अच्छा। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।